अब देखो कि that I left question number 10 yesterday, that here I am solving it again. The question number 10 is, show that the system of equation 2x minus 3y is equal to 5 and 6x minus 9y is equal to 15 has an infinite number of solution. यानी कि हमें क्या करना है, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में है कि नहीं है वो चेक करना है. हमें ये शो करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन शो गिव व्हाट गिवन इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉट. कैसे करते हैं? वी नो वेरी वेल दैट इज a1 इज इक्वल टू 2, a2 is equal to 6, b1 is equal to minus 3, b2 is equal to minus 9, c1 is equal to 5 and c2 is equal to 15. So when we find the ratio a1 upon a2, we are getting 2 by 6, it means 1 by 3. Second time b1 upon b2 is equal to minus 3 by minus 9, also 1 by 3, and c1 upon c2 is equal to 5 by 15, it means 1 by 3. Okay, so therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to 1 by 3. Therefore pair of equation gives what? Infinite many solution. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. वेट करो, थोड़ी स्पीड आएगी वापस, वेट करो, क्लियर दिखेगा. Now it is clearly visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So see, when you want to prove that whether the equation gives a what we can say infinite many solution, no solution, or we can say unique solution, then all such equations we have to find the ratios of the individual coefficients as well as constant, and then we verify the conditions. Once we verify the condition, we can easily find that the given equation gives a particular type of solution or not. तो देखो सभी के पास पीडीएफ तो होगी, क्योंकि मैंने कल भेज दी थी, दोनों की दोनों आरडी में से बना के भी भेजी और आरएस अग्रवाल से भी भेजी है. किसी के मीन्स ना हो तो डाउनलोड करके देखो. उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो मैंने फर्स्ट वर्कशीट 1 करके भेजा है. वर्कशीट 1 मेरी आरएस अग्रवाल से मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं. उसमें क्वेश्चन नंबर 11, कैन एनीबडी एक्सप्लेन हाउ द क्वेश्चन नंबर 11 वी कैन सॉल्व? Sir, can I? यस. Sir, in this equation, we have to just find A1, A2, B1, B2, C1, C2, and then we have to write for no solution. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2. And
Okay. So in this question, first we find the ratios of the individual coefficient of the x and y as well as the constant. And once it follow, if it is followed the condition or verify the condition like a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then we can say that it gives infinite what? No solution. Okay. Now see question number 12. Question number 12. In a question number 12, it is given that for what value of k does the system of equation, for what value of k does the system of equation has a unique solution or no solution? Means we need to find the value of k for both the condition. First, the equation is x plus 2y is equal to 5. Second is 3x plus ky is equal to 15. Now, sorry, plus 15 is equal to 0. Now, see, the both the equations has the different type of condition. One is in the standard form, another one is done in the normal form. So, if such a kind of the equations or questions we have, then we need to convert them into the standard form. हमें उसको उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? दोनों के दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? Is it visible, student? Okay. Yes, sir. नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्चुअली क्या है कि हमें दो इक्वेशन दे दी, जिसमें से एक इक्वेशन, सॉरी मैंने यहाँ पे के एक्स प्लस 2y है और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y. तो देखो दोनों इक्वेशन में एक्चुअली हुआ क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन है, थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया फिर से. क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट इक्वेशन है हमारी के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. अब देखो यहाँ पे दोनों नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे तो उसमें एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दूसरी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है. तो ऐसी कोई भी क्वेश्चंस आए जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट फॉर्म में हो, तो हमें सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आइदर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म. अब यहाँ पे है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव फर्स्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या हो वो यूनिक सॉल्यूशन दे, सेकंड हो फॉर नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग a1 मेरा क्या है k, a2 क्या है वो है 3, b1 क्या है तो 2, b2 क्या है -4, c1 क्या है 5, c2 क्या है 10. अब सबसे पहले है यूनिक सॉल्यूशन. पहला क्या है? यूनिक सॉल्यूशन. एज वी नो वेरी वेल कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन द कंडीशन इज व्हाट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि k बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई -4, तो 2 2 ज़ा 4, सो k शुड नॉट इक्वल टू -3 बाई 2. So this condition k should not equal to -3 by 2, it means k belongs to R, but k should not equal to -3 by 2 gives what kind of the solution? Unique solution. Okay. Now in the second case, हाँ बोलो.
-3 कहाँ से आया? तो देखो यहाँ पे जब मैंने इसको कट किया तो ये -2 था। डिनोमिनेटर में कभी भी हम नेगेटिव साइन नहीं रखते, हम ऑलवेज नेगेटिव साइन कहाँ शिफ्ट पुट करते हैं? तो न्यूमरेटर में। तो जो माइनस साइन थी वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गई, यानी ये आंसर आ गया -3/2। अब समझ में आया? ओके। अब देखो सेकंड जो है, उन्होंने सेकंड कंडीशन कौन सी बोली है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन है, तो इस नो सॉल्यूशन कंडीशन की क्या है? तो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? एम आई करेक्ट और नॉट? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Am I correct? No solution condition. a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Am I correct or not? Sir, वो b1/b2 does not equal to c1/c2. ओके। दूसरे स्टूडेंट जतिन गलत है। दूसरे स्टूडेंट ओके, 1 सेकंड, मैं 1 बाय 1 सबको पूछता हूँ। आयुष, आई एम करेक्ट और नॉट? नो सर। ध्यान। नो सर। वेद, पटेल वेद, Yes sir. मैं करेक्ट हूँ कि नहीं हूँ? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ, आवाज़ तो आ रही है? Yes sir. हाँ, तो देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या सही है कि गलत है? नोटबुक कंप्लीट की है वेद पटेल? सर नो, नहीं। क्यों नहीं की नोटबुक कंप्लीट? सर क्या? नोटबुक कंप्लीट नहीं की? सर किए मैं। तो फिर ना क्यों बोला? सर आपने बोला ना वो क्वेश्चन का आंसर ओके दे रहा हूँ। ओके, तो क्या गलती है वेद पटेल? क्या गलती है? दूसरों ने गलत बोला तो तूने भी गलत बोला, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। तो फिर गलती क्या है मेरी? ओके, चलो दूसरे को पूछते हैं, किसी और को। रावल वेद, सर गलत है। क्या गलती है मेरी? सर उसमें नॉट इक्वल टू की साइन आएगी। नॉट इक्वल टू क्या आएगा? ये 1/e2 और नॉट इक्वल टू c1/e2 वैसे आएगा। लेकिन वो तो ठीक है। वत्सल, 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 हेत पटेल, यस सर। रावल वेद सही कह रहा है? नो सर। तो गलती क्या है मेरी? सर a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. यस, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब उसकी वजह से क्या हो गया?
अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो k/3 इज इक्वल टू 2/-4 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 5/10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो ये दो रेशियो ले लेंगे कि k/3 इज इक्वल टू 1/-2, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा मेरा -3/2। अगर k -3/2 हुआ तो यहाँ पे कैसा मिलेगा हमें, उस टाइम पे मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। समटाइम्स इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, अगर क्या होना चाहिए वो भी दिया है तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट थर्ड को रेशियो को इक्वल कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 हो गया, तो k शुड नॉट इक्वल टू 3/2। समझ में आया? समझ में आया? किसी को डाउट है? आवाज चिपक रही है, नहीं आया सर। ओके, वेट करो। ओके, कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये हो सकता है कि k की वैल्यू क्या होगी तब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और k की क्या वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों आंसर निकाले। सबसे पहले k क्या होना चाहिए उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कंडीशन ले ली, और वहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई -3/2। इफ आई पुट इन द प्लेस ऑफ k -3/2 आई विल गेट व्हाट द करेक्ट आंसर और व्हाट नो सॉल्यूशन केस। बट अब मैंने फर्स्ट थर्ड रेशियो को इक्वल किया कि k/3 इज नॉट इक्वल टू 5/10, तो इसको जब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 3/2 मिला। तो इस केस में मुझे क्या पता चला, इस केस में मुझे एक चीज पता चली कि अगर k मैं 3/2 पुट करूंगा तो नो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो होता है k इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढना चाहो तो चलता है, लेकिन ये आपको ढूंढना है हर एक में। समझ में आया नो सॉल्यूशन केस? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? ओके, हाँ बोलो। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 सभी के सभी क्वेश्चन सेम है। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15 it is given that 2x plus 3y is equal to 7, and second है k minus 1x plus k plus 2y is equal to 3k। CBSE 2010 में ये पूछा गया है, find the value of k for which each of the following system of linear equation has इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें k की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है कि जिसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहले मैं सभी जो कोफिशिएंट है उसको मेंशन करूंगा कि a1 मेरा क्या है 2, a2 क्या है k माइनस 1, b1 क्या है 3, b2 क्या है k प्लस 2, c1 क्या है 7 और C2 क्या है तो वो है 3k। अब यहां पे देखो कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन रहेगी, कोई बताएगा? सर कहना है ओके, आस्था बोलो। सर a1/, आस्था बोलो। A1/A2 is equal to B1/B2
यस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सारी वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 क्या है k माइनस 1, b1 क्या है 3, b2 क्या है k प्लस 2, c1 क्या है 7, c2 क्या है 3k। अब देखो कि हमें k की वैल्यू निकालनी, हम कोई भी दो पेयर इक्वल बताएंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर 2 बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई k प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1। आंसर क्या आएगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। तो लास्ट में 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2k माइनस 3k यानी कि माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। If I got k is equal to 7, I will get the what? Infinite many solution. Is this clear? समझ में आया? सर हाँ बोलो। यस सर। वापिस एक बार समझाओ। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने रेशियो में, हाँ ठीक है ब्लर हो गया। 1 सेकंड वेट करो, फ्लक्चुएशन आज बहुत ज़्यादा है इंटरनेट में। स्क्रीन क्लियर होने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गई सर, हो गई सर हो गई क्लियर। ओके, अब देखो एज पर द कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल थे। तो मैंने वैल्यू रखी, तो a मेरा क्या था 2, a1 मेरा 2 था, तो a2 क्या हो गया k माइनस 1, b1 3 था, b2 क्या हो गया k माइनस 3 सॉरी k प्लस 2 और 7/3k था। अब देखो कोई भी दो पेयर आप यहाँ पे इक्वल बता सकते हो कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। अब तीनों में से कोई भी कंडीशन इक्वल बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को कि 2 इंटू के प्लस 2 और 3 इंटू के माइनस 1, सॉल्व किया तो मुझे k की वैल्यू क्या मिल गई 7। तो ये इस वे से आपको आंसर ढूंढना है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इज इज क्लियर? यस सर। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड किया तो ही k इज इक्वल टू 7 आया। आप सेकंड थर्ड करके चेक करोगे तो भी k इज इक्वल टू 7 आएगा, फर्स्ट थर्ड करके चेक करोगे तो भी k इज इक्वल टू 7 ही आएगा। समझ में आया? तो हमें तो सिर्फ कोई भी एक पेयर उठानी है, उसको इक्वेट करना है, उसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही निकालना है और इस तरह से ही सॉल्व करना है। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 हमें सॉल्व करना है और 21 के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 2002 के सेट सी में आया था, सीबीएसई में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी इन्होंने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ दोनों वर्कशीट आज कंप्लीट करनी है, ये याद रखना। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, दोनों वर्कशीट आज पूरी कंप्लीट करनी है। और दोनों वर्कशीट में अगर लगे कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है तो वो मत करना, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉमन नहीं है वो सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या हो गया है, a माइनस 1 एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दूसरा है 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई इज इक्वल टू 6। सिंपल है, a1 मेरा क्या हो गया a माइनस 1, b1 या a2 क्या हो गया 6, b1 क्या हुआ यहाँ पे 3, b2 क्या हो गया मेरा 1 माइनस 2b, c1 क्या हुआ 2,
C2 क्या हो गया 6। ओके, अब देखो कि यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस वन बाई सिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 बाई 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 2/6। समझ में आ रहा है? स्क्रीन क्लियर होने दो। ओके, स्क्रीन क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो दो इक्वेशन थी, उसमें दोनों के मैं कोफिशिएंट मेंशन किया और फिर वहाँ पे इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन दे, तो कंडीशन रखी और कंडीशन में वैल्यू रखी। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास अननोन ए भी है, अननोन बी भी है। अगर मैंने फर्स्ट सेकंड को इक्वेट किया, फर्स्ट सेकंड को इक्वेट किया तो होगा क्या कि मुझे अननोन की एक पेयर मिल जाएगी, यानी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। लेकिन फर्स्ट थर्ड को देखो, फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करो, उससे मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वही देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें इजी सॉल्यूशन देगा हमारे अननोन को फाइंड करने के लिए। जनरली प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही होता था, मतलब के होता था, और के को सॉल्व करना हमारे लिए इजी था क्योंकि वो एक ही अननोन था। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा अननोन है तो हमें वही पेयर ढूंढनी पड़ेगी जो हमारे सॉल्यूशन को इजी बनाए। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड की पेयर ले तो a1 माइनस सिक्स, a1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2/6, 6 कट, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1, a मुझे मिल गया 3। ये मेरा फर्स्ट आंसर हुआ। उसी तरह सेकंड टाइम मैं क्या ले लूँगा, तो 3/1 माइनस 2b इज इक्वल टू 2/6, 2 3 ज़ा 6, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 2b, -1 इधर आया तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू -2b, सो 8 इज इक्वल टू -2b, सो b इज इक्वल टू 8/-2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -4i। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इन क्वेश्चंस में, हाँ बोलो। सर अगर तीनों में अननोन वैल्यू हो तो? हाँ वो मैं करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है वो उसके जैसा ही है जो आप बोल रहे हो। मैं क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, नहीं 25 तो स्ट्रेट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है वो दो अगर आ गए, 23 आ गया तो 24 आ जाएगा, और 24 आ गया तो 25 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर दें। 26 भी उसके जैसा ही है जो 2001 के सी सेट में। देखो पहले क्या था कि मैथ्स का पेपर जनरली थोड़ा सा हार्ड रहता था, अब डे बाय डे मैथ्स का पेपर इजी हो रहा है। क्यों इजी हो रहा है? आप ऐसे क्वेश्चंस जनरली इन 4-5 सालों में कभी नहीं देखोगे। आपको इजी स्ट्रेट के वाले क्वेश्चंस दिखेंगे अभी के 4-5 सालों में। उसके पीछे रीज़न भी है कि मैथ्स का इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स में कम हो रहा है। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कि
2x प्लस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी है। यहाँ पर भी क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देना है मुझे। और एक और चीज़, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर इसको मुझे देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले a1 तो मेरा 1 हो 2 हो गया, a2 मेरा क्या हो गया a प्लस बी, b1 क्या हुआ तो b1 हो गया मेरा -3, b2 क्या हो गया माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी -3, और c1 मेरा क्या हो गया 7, और c2 क्या हो गया 4a प्लस बी। समझ में आ रहा है? स्क्रीन ब्लर हो रही है, वेट करो। सर अभी हो गई। ओके, तो देखो, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। अब उस हिसाब से यहाँ वैल्यू रखे तो 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू -3 बाय माइनस ऑफ ए प्लस बी -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाय 4a प्लस बी। क्लियर हुआ? ओके ना, अब यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें पहले तो 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाय ए प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7 बाय 4a प्लस बी। आप दोनों में से कोई दो दो पेयर इक्वल करो। पहले तो मैं फर्स्ट सेकंड करूँ, फिर सेकंड थर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को करें या फिर, हाँ बोलो। वो आपने 3 बाई ए प्लस बी -3 वाला है ना, तो उसके आगे माइनस की साइन है। वो माइनस की साइन थी दोनों में, तो वो दोनों माइनस साइन मैंने कट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड पेयर ले लेते हैं कि 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाय ए प्लस बी -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी -3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी हुआ। सॉल्व करेंगे कि 2a प्लस 2b -6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। हम लोग दोनों a और b को उस तरफ ले जाते हैं तो -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल टू प्लस 3b माइनस 2b। तो यहाँ पे क्या हो गया -6 इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू -6 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू b माइनस बी -6 लिख सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सिंप्लीफिकेशन? यस सर। नाउ फर्स्ट थर्ड को ले लेते हैं। फर्स्ट थर्ड है 2 इंटू 2 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाय 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो हम लोग 7 में कोई इधर ले आएंगे, 2b इधर ले जाएंगे, तो 8a माइनस 7a इज इक्वल टू क्या होगा 7b माइनस 2b होगा।
तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5b हुआ। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट? यहाँ तक दोनों स्टेटमेंट में किसी को डाउट? No, sir. ओके, अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में a की जो वैल्यू मिली मुझे, a इज इक्वल टू 5b में वो रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 5b प्लस b, तो -6 इज इक्वल टू 6b। हाँ बोलो। अब आ गया? वेट करो, स्क्रीन क्लियर। नाउ अब देखो, स्क्रीन क्लियर हो रही है? ओके, अब हो जाएगी। Yes, sir. तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे मीन्स सॉल्व किया वो क्लियर हो गया, ये एक्सप्रेशन। Yes, sir. सेकंड एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया वो समझ में आया, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करके। Yes, sir. अब देखो कि जो a की वैल्यू मिल गई 5b, a की वैल्यू जो 5b मिली, वो मैंने इक्वेशन में 1 में a जो था मेरा, उस a की जगह पे मैंने 5b रखा, तो मुझे क्या मिल गया, 5b प्लस b यानी 6b हो गया। तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, -6/6, तो b की वैल्यू मिल गई -1। यहाँ पे b मिल गया, वही b की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूंगा, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -1, आंसर आ जाएगा -5। समझ में आया? सर वो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, हाँ तो एक बार समझा तो जो देखो, b की वैल्यू कौन सा, सेकंड इक्वेशन पूरा समझा? हाँ ठीक है, मैंने फर्स्ट थर्ड को इक्वेट किया, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, यानी कि 4a प्लस बी और a प्लस बी को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू ए प्लस बी हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, 2 इंटू 4a प्लस बी हुआ। जब ब्रैकेट ओपन किया तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी वो 8a हुआ, 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2b हुआ।
सिमिलरली यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 7 बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 एंड 7 बी हो गया। अब देखो आगे कि मैंने जो बी थे वो बी साइड ए वन साइड कर दिए, ए साइड कर दिए, यानी कि 8a माइनस 7 क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया, 2 प्लस था उधर गया तो माइनस, RHS साइड शिफ्ट हुआ इसलिए वो भी क्या हो गया माइनस। तो 8a माइनस 7a हो गया, 7b माइनस भी क्या हो गया 5b। ये समझ में आया? Yes, sir. अब मैंने जब मुझे पता चल गया कि ए और बी का रिलेशन मिला, वो ए और बी के रिलेशन को मैंने यूज कैसे किया, तो ए की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की जो मैं क्या थी ए प्लस बी इज इक्वल टू -6 था, तो ए की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू 5b रखी, तो वो 5b प्लस बी इज इक्वल टू -6 हुआ। 5b प्लस बी कितना हो जाता है 6b, और 6b और -6 इधर ले आओ तो क्या होगा डिवाइड करेगा, तो -6/6 मुझे क्या मिलता है -1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई -1 मिली। समझ में आया यहाँ तक? अब b मिल गया, a ढूंढना है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू रखो, इसमें b की वैल्यू रखो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर रखने में थोड़ा सा ऑपरेशन हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आंसर तो आने वाला, आंसर नहीं आने वाला है ऐसा नहीं, लेकिन ये मुझे स्ट्रेट लगा, इजी लगा, तो मैंने उसको क्या कर दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, तो b की जगह पे मैंने -1 रखा, तो a की वैल्यू क्या हो गई -5। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी डाउट? No, sir. तो अब देखो कि मैंने जो 2 वर्कशीट भेजी है उसमें 2 वर्कशीट में ऑलमोस्ट यही है, आपको के और यही वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है। सभी के सभी लोग दोनों वर्कशीट सॉल्व करेंगे। याद रखो कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है दोनों का मिला के, तो वो आपको नहीं करना है, कॉमन क्वेश्चन नहीं करने, कॉमन क्वेश्चन में एक ही करना है, नहीं करने का मतलब दो नहीं करने ऐसा नहीं, कोई एक करना है, उसको फिर सीखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आज इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बाय।